لیے تیار نہیں تھا، ایک دوسرے کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسے مہاماری کے اندر بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں مالیگاؤں شہر کے سوشل میڈیا کے لوگوں کا کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ان لوگوں کا بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں یہ سوشل ورکروں کا جو اپنے طاقت کے ذریعے اپنا کارمندی کے ذریعے حوصلہ افزائی کو اپنا حوصلے کو بڑھاتے ہوئے حکمت کے ساتھ خدمت کا کام کرنے والے ان سوشل ورکر محمد عمیر صاحب کا، محمد سفیان صاحب کا، ان لوگوں کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں. ایسے مہاماری کے اندر بھی انہوں نے گھر کے اندر خاموش نہیں بیٹھا بلکہ اپنے آپ کو لگاتے رہے. ان کے پانی کا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے دوا کا انتظام نہیں کیا جا رہا ہے. ہم نے ہماری طرف سے جمعیت علماء کی طرف سے پورا 80-90 دن تک کے ان لوگوں کو کھانے کا انتظام ہم نے کیا ہے. جعفر نگر کے اندر کافی محمد امین، محمد فاروق صاحب کو، ممتاز شیخ صاحب کو، انصاری محمد عمیر صاحب کو، انصاری محمد سفیان صاحب کو، عبداللہ کمال صاحب کو، یاسین ہمدار صاحب کو، جو سپر یونین ڈسٹری کے ذمہ دار ہے، ان لوگوں کو وہاں سے جب فون آیا تو ہم لوگوں نے فوری طور سے ٹینکر بیچ کر کے، خرابہ پانی کا بیچ کر کے ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا. یہ خدمت خلق کا کام ہے، اللہ اس کا بڑا اجر دینے والا ہے. جو انسان کا پیٹ اگر بھرا ہو، پیٹ فل ہو تو ان کو کھانا کھلانے سے کوئی اجر نہیں ملتا، لیکن واقعی میں اگر کوئی انسان بھوکا ہو، کوئی انسان پیاسا ہو، اس کے صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر کے کھڑے ہو کر کے ان کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، پانی کا انتظام کر دیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ کھانے والا پینے والا آپ کے لیے دعا دے گا. یہ خدمت خلقوں کا کام تھا، مہاماری کا کام تھا. میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے آج کے پروگرام کی نظامت کرنے کے لیے منصور اکبر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے تشریف لیں. بھائی میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے ہمارے مہمان اور مالیگاؤں شہر کے کافی الیکٹرانک میڈیا کے روئے رہا منصور اکبر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور خدمت کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کی تقریب کے ساتھ اس پروگرام کا آیوجن کرنے والے مقصود بھائی، آئیٹک یونین کے ذمہ داران، درے گاؤں مزدور یونین کے متعلق سبھی دوست احباب، آج ہم لوگ یہاں عمیر صاحب کی دعوت پر بہت آئے ہوئے ہیں اور آنے کا جو مقصد ہے کہ بہت خوشی ہوئی جب میرے کو دعوت نامہ میں نے واٹس ایپ پر دیکھا. یار عمیر صاحب کی اب جو لوگ ان کے ساتھ میں کام کرتے ہیں ان کی سراہنا کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا. میں بہت بڑا مقرر تو نہیں ہوں، بہت زیادہ بول نہیں پاؤں گا مقصود بھائی، مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے مجھ سے سینئر عمر گھرانے کے مالیگاؤں میں جب پہلے محلہ تھا تو 5 کنڈیل، چونا بھٹی، نیا پورا، اسلام پورا، اتنے ہی علاقے تھے. پھر دھیرے دھیرے مالیگاؤں بسنا شروع ہوا تو عبداللہ نگر بسا، حکیم نگر بسا، مسلم نگر بسا، آزاد نگر بسا، ڈپو بسا. تو مالیگاؤں دھیرے دھیرے بڑھتا آج ہائی وے تک مطلب پہنچ گیا. تو سب سے زیادہ مسئلے مسائل ان علاقوں میں رہتے ہیں جو نو آباد بستی ہوتی ہے. جیسے آج گولڈن نگر کا، درے گاؤں کا آپ لوگوں کا جو علاقہ ہے یہ نو آباد علاقہ ہے. اس علاقے میں یہ نوآباد ہونے کی وجہ سے یہاں پر کام کاج کا فقدان ہے، بنیادی وسائل کا فقدان ہے. یہ ایک اپنی جگہ ہے. وہیں یہ صنعتی علاقہ ہے تو اس علاقے میں صنعتی وسائل بھی زیادہ ہے کیونکہ اسلام پورا، نیا پورا دوسرے لوگوں کا 50% لوگوں کا روزگار پاور لوگ ہے اور 50% دیگر دھندے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اس علاقے میں 95% لوگوں کا کاروبار صنعتی اعتبار سے. تو جو بستی جب نئی بستی ہے تو ہم نے دیکھا کہ نیا اسلام پورے میں اس طریقے کے آپ جیسے ادارے والے لوگ تھے، اس طریقے کے متعلق لوگ تھے، تو یہ لوگوں کا ایک اچھا کمبینیشن بنا اور یہ ایک آپس میں مل کے اس علاقوں میں ان لوگوں نے کام کیا. میرے دیکھتے عبداللہ نگر میں بھی ایسے ہوا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسی تنظیموں کو جو نئے نوآباد علاقوں میں رہ کر اس طریقے کے بنیادی اور عوامی سماجی کام کاج کے لیے آگے رہتے ہیں. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج یہاں پر جو بھی پروگرام رکھا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی.
इस बात की मुझे खुशी हुई कि सनती काम काज के लिए हम लोग ये लोग को, अब सुफियान भाई को, उमर भाई को, ये लोग को देखते रहते हैं यार ये सनती काम काज के लिए आगे रहते हैं। आज आप इन लोगों की 27 करोगे, ये इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग इनके साथ में, कल इससे ज्यादा लोग आएंगे। तो मेरा सिर्फ आप लोगों की ये गुजारिश है कि ये इलाका बहुत पसमानदा माना जाता है वसाइल और असबाब को लेकर। तो यहाँ गटर रोड तो कारपोरेशन, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत जल्दी बन जाए, कारपोरेशन के बाद मखसूस फंड होता है और इन इलाकों में आने तक 10-20 साल लग जाता है। लेकिन अभी फौरी तौर पर जो यहाँ ज़रूरत है तो वो सनती मसाइल को दूर करने की ज़रूरत है। उसका सारा दारोमदार कारागिर से लेकर टेक्सटाइल वाला हो, बुनकर हो या तरासन वाला हो, वेल्डिंग वाला हो, वर्क शॉप वाला हो, इलेक्ट्रीशियन हो, हमाल हो, गार्ड प्रेस वाला हो, कई खानदान इससे जुड़ते हैं। पावर लूम सनत से, ये मालेगांव के पावर लूम सनत हम लोगों की शान, ये हम लोगों की जान, इसी के ऊपर सारी जिंदगी का दारोमदार है। तो आने वाले वक्त में आप लोग इसी तरीके से साथ में रहकर तमाम सनती मसाइल को हल करेंगे, एक दूसरे का अच्छा कॉम्बिनेशन पैदा करेंगे। आप लोग उनके काम आए, ये लोग उनके काम आए। आज उमैर सर जैसे लोग आगे आए, इस इलाके से मजीद लोगों को भी इस तरीके से आगे आना चाहिए। ये आएंगे उस वक्त आएंगे जिस वक्त तो आप जैसे लोग उनकी 27 के खिलाफ में लिखना ही हमारा काम है। आज कारपोरेटर से तुम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन का जमाना है तो बकरी को भी सलाम कर देंगे, और अगर इलेक्शन नहीं है तो तुमको कोई पूछेगा नहीं। तो कारपोरेटर अपनी जगह, लीडर अपनी जगह, आमदार अपनी जगह, जब तक हर इलाके में सोशल वर्कर नहीं पैदा होंगे, जब तक शहर से, समाज से, मुल्क से, रियासत से मसाइल खत्म नहीं हो सकते। और सोशल वर्कर उस वक्त पैदा होते हैं जब उनकी हौसला अफजाई और सफाई की जाती है। तो इस तरीके के प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उमैर सर के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें मजबूत काम काज की तौफीक देवे, हिम्मत और हौसला देवे। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनका साथ दे, ताकि एक सनती प्रेशर लेकर ये लोग मालेगांव शहर के ऑफिसरान से, इंतजामिया से अपनी बात मनवा सके। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बेशुमार कारखानादार है यहाँ पर, हर कोई अपने अपने कारोबार से मुंसलिक है। ये एक कोऑपरेटिव माशरा कहीं न कहीं से हर शख्स एक दूसरे के लिए काम आता है। ये मालेगांव का खासा है, ये इमदाद बाहमी के माशरे की मालेगांव शहर बेहतरीन मिसाल। जिस तरीके से उमैर सर लगे हुए हैं, मैं देखता हूँ इनको कि यूसुफ इलियास साहब के साथ में सुफियान भाई ये लोग हमेशा दिखते हैं मेमोरेंडम देना करना। ऑफिसर उस वक्त से डरता है जब आप जाओगे। अगर आप किसी इलाके का काम लेकर जा रहे तो पूछेगा ये कौन सा इलाका है, तो उसको ध्यान नहीं आएगा, बोले ठीक है मैं करता हूँ, रख देगा। लेकिन जब ये बोला जाएगा कि ये दरेगांव इलाके का काम है तो बोलेंगे यार ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, इनका पहले करके दो। तो इस तरीके से बाअमल रहेंगे जब सुफियान भाई और ये उमैर सर ये लोग उस वक्त जाएंगे जब आप मसले मसाइल के लिए इनको बुलवाएंगे। तो मेरा तो इन पर कोई हक नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरीके के लोग हैं कि आप जब भी जिस वक्त भी आधी रात को इनको जायज कामों के लिए, हक के काम के लिए बुलाएंगे, ये बंदे आप लोगों के पास में हाजिर रहेंगे। आप लोगों ने उनकी 27 की, इसके लिए बेइंतहा मशकूर हूँ और तमाम हज़रात को मुबारकबाद देते हुए मुझको बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस इलाके में खैर के काम हो, ये इलाका प्रमोट हो, ये इलाके से मसाइल खत्म हो, मेहनत कशों के इस शहर में मेहनत कशों की शान समझा जाने वाला ये मेहनत कशों का इलाका है, ये तरक्की करे, हम लोगों की दुआ रहती है। यही दुआ मैं अल्लाह के हुजूर करता हूँ बवसीला सरचश्मे यूद सका शाफ़े रोज़े जगह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। ये थे मंसूर अख्तर साहब जो अपनी बातों को रख रहे थे। मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए दरेगांव के मशहूर और मारूफ शख्सियत मुमताज सेठ साहब का नाम नामी इसमें कराने पेश करता हूँ। सुन्नत के साथ कि मेरा दो साथी इसका तारीफ करे। अभी हमारे सामने जिस नामे गिरामी का नाम पेश की गया है सदारत के लिए, मैं उसकी पुरजोर हिमायत और तारीफ करता हूँ और सदर साहब की इजाज़त लेते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। आज के प्रोग्राम की सदारत के सदर साहब की इजाज़त से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं हमारे इस दरेगांव के मशहूर और मारूफ खुर्शीद मुकादम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुख्तसर की चंद अल्फाज से इन नौजवानों की हौसला अफजाई करें। खुर्शीद मुकादम साहब।
मोहसिन हासिम, जनाब सब्र साहब और मेरे दोस्त साथी सोशल वर्कर साहब मंसूर भाई। हाँ, कोई मुकर्रिर या कोई लीडर नहीं है, लेकिन मेरी ये तमन्ना है कि जब भी ये नौजवान संघर्ष कमेटी आपको आवाज़ दे, बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। आज जो वक्त निकाल कर आप लोगों ने इनको दिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर इन लोगों को दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नौजवानों को गुजारिश करता हूँ कि हमेशा इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कोशिश करें। और ये जो लीडर साहब ने बताया कि कारपोरेटर या कोई लीडर कोई काम नहीं करेगा जब तक कि हम उनको बार बार अपनी बात को ले जाकर के सामने रखेंगे नहीं और एक आम अल्फाज में तो उनको परेशान नहीं करेंगे, तब तक तो उनके कान पे जू नहीं रहेगी। आज गैर मुस्लिमों को मैंने देखा है कि वो सुबह जब अपने ऑफिस, दफ्तर, कॉलेज, स्कूल या काम पे जाने लगते हैं तो देखते हैं कि अपनी गली में कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कहीं गंदगी है, कुत्ते कुछ ढाई गर्दी कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी ड्यूटी का 10 मिनट निकाल करके अपने दफ्तर पे लग करके कागज लेटर लिखते हैं कारपोरेशन के नाम, और जाते हुए कारपोरेशन में वो लेटर डाल देते हैं। अब बताओ कि हम नौजवान और हम साथी, मेरी उम्र के लोग भी, हम लोग होटलों पर बैठ कर बातें करते हैं, पूरी दुनिया की मालूमात हमको होती है। बिल क्लिंटन क्या कर रहे हैं, वजीर आजम अपने हिंदुस्तान का क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, तमाम बातें अखबार पढ़कर हम बात करते हैं। ये भी बोलते हैं कि यार मेरी गली में यार 2 महीने से कचरा नहीं उठा। मैं खुद बोल रहा हूँ साथियों से कि 2 महीने से मेरी गली में कचरा नहीं उठा, यार क्या करूँ। करना कुछ नहीं है, होटल पे बैठकर आपस में बात करने से काम नहीं होगा। हमारी गली का कारपोरेटर है, उसको सलाम करो, उसको रोको और उससे शिकायत करो, ना माने तो 4 दिन 5 दिन के अंदर उसको नोटिस दो कि यार तुम काम करो, नहीं तो मैं कारपोरेशन में तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूँगा, लेटर दूंगा। और लेटर दो, तारीख के साथ दो, 15 दिन के बाद फिर दो, तीसरी बार उस कारपोरेटर का गिरबान पकड़ कर काम दो। ये कानून है। हमको हमारे शहर के लीडर ने बताया नहीं कभी कि काम लेने का क्या तरीका और क्या कानून है। हम नौजवानों को उसको समझना चाहिए। जब भी ऐसा कोई मौका आवे, कोई प्रोग्राम को हाजिर लगाओ ताकि वहाँ मालूम पड़े, हमारे दोस्त साथी बताने के काम कैसे लेना है। तो मैं ये बोल रहा था कि वो गैर मुस्लिम लोग लेटर लिख के वहाँ दे देते हैं, उसकी एक कॉपी अपने पास रखते हैं, फिर 15 दिन के बाद वो फिर हाजिर देते हैं टेबल पर जिस सेक्शन का वो काम होता है, वहाँ सेक्शन में जा करके तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बात करते हैं और अपनी बात को इस जरिए रखते हैं कि लेटर तुम्हारे पास आया है, ये मेरे पास की जरा उसको काफी लेटर निकालो। वो लेटर निकलवाते हैं और बात करते हैं, वो काम होता है। कोई कारपोरेटर काम नहीं करता, कोई लीडर काम नहीं करता, काम हमको करवाना है। कोई काम का आवाज है ना पुरानी कि कुछ गुड़ गीला कुछ बनिया ढीला, तो गुड़ तो गीला होता है, कारपोरेटर तो नालायक होते हैं, जो भी करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी हम लोग अपने तौर से पूरी नहीं करते। दोस्तों साथियों, खासतौर से नौजवानों, ये बातें सुन लो कि होटल पे बैठकर आपस में बात करने से काम नहीं होता, काम करवाने से काम होता है। हम तासुब करोना रहते हैं, ऐसा नहीं है। तासुब अगर 10% जाए तो 90% हमारी गलती और कोताही, हम उसको समझे और दूसरे लोगों को मालूम करें कि काम कैसे करवाना है। तो ऐसे प्रोग्रामों में अगर हम जुटेंगे तो मालूम होता कि दोस्तों साथियों इस बात पर ध्यान दें, जिंदगी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीना नहीं है। अगर आवामी काम, रोड, गटर, संडास, नल वगैरह वार्ड के अंदर हम करवाएंगे छोटे वर्कर बनकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा साहब का कार्य खैर कहते हैं इसको। इस काम को कार्य खैर कहते हैं। अपने लिए तो कोई भी जीता है, दोस्तों साथियों, दूसरों के लिए जीना भी जीना है। और असल जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। बस ये अपनी बात रखकर मैं शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। ये थे हमारे दरे गांव के मशहूर और मारूफ शख्सियत खुर्शीद मुकादम साहब। हमें बिला ताखीर हमारे इस वार्ड के मशहूर और माशूक सोशल वर्कर और अपने खिदमत कल के काम को आगे बढ़ाने वाले, मेरी मुराद है कामरेड मकसूद अंसारी साहब से कि वो आए अपनी मुख्तसर की बातों को रखें।
डाइस पे बैठे हुए तमामी हजरात और इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे आली जनाब मुमताज़ सेठ साहब, उनकी इजाज़त से मैं 2 लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ। हमें 2 लफ्ज़ बोलने की इजाज़त मिल गई है, तो मैं शेर के साथ अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकती, देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकती, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा हमें। ये आज का प्रोग्राम पावरलूम मजदूर यूनियन की जानिब से एक कॉमरेड ग्रुप जो दरेगांव के अंदर पावरलूम संघर्ष समिति के जिम्मेदारान का इस्तेकबाल कर रही है, और वो इस्तेकबाल हम लोगों ने कुछ देखा, कुछ सुना, तो हमारा दिल मचल उठा कि नहीं, अगर कोई शख्स किसी अच्छे काम के लिए आगे आता है तो उसकी हौसला अफजाई करना हमारी जिम्मेदारी है। ये अलग बात है कि कोई काम करने से खुश होता है और कोई नाराज होता है। ये तो जिस वक्त दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर आज तक चलते आया है, हर एक शख्स और एक शख्स से खुश नहीं रहता है। तो ये चीजें अपने ध्यान से निकाल दें, और हम दरेगांव के अंदर कैसे क्या काम होगा, आवाम की तकलीफ कैसे दूर होंगी, ये चीज हमें ध्यान में रखकर हम जैसे नौजवानों को, हमारा ग्रुप संघर्ष समिति का ग्रुप, अगर यहाँ की आवाम को किसी चीज की तकलीफ होती है तो बिला झिझक हमसे राबिता कायम करें। इंशाअल्लाह हम उनकी तकलीफ दूर करने की बहुत जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। चाहे वो हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे पुलिस स्टेशन का मसला हो, चाहे और दूसरी वजूहात से कोई मसले दरपेश आते हैं, तो आप बिला मुलाहिजा हमसे मुलाकात करें। और आज हमने ये दरेगांव के अंदर देखा है, जब हम इस दरेगांव के अंदर हमने एंट्री की आज से 7-8 साल पीछे, तो इस दरेगांव के अंदर न तो हमें सड़क नजर आई, न तो आज जो पुल बन गया है वो पुल नजर आया। हम उस नाले के अंदर से उस पार से इस पार आए हैं, लेकिन आज अल्लाह की शान देखें कि कुछ नौजवानों और कुछ बुजुर्गों की दुआ से इस दरेगांव के अंदर बहुत ढेर सारे काम हो गए हैं। ये सब देखते हुए हमने ये इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा है, और हमारी सोच है ये कि दरेगांव के अंदर कोई भी दवाखाना हमें नजर नहीं आता है। रात के वक्त रात अगर किसी इमरजेंसी में कोई पेशेंट हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाए, या सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो छोटा सा क्लिनिक को भी दरेगांव के अंदर मौजूद नहीं है। तो हमारी ये सोच है कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द इस दरेगांव के अंदर एक छोटा सा इमदादी क्लिनिक को खोलने वाले हैं, और हमारे सरपरस्त आली जनाब अब्दुल हमीद सेठ साहब ने कहा था कि हमारी जिंदगी रही तो हम इस दरेगांव के अंदर एक हॉस्पिटल तामीर करके देंगे। ये बहुत खुशी की बात है। तो ये सब देखते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा है। और रही साफ सफाई की बात जो है, अभी जैसे दूसरे हजरात ने कहा कि कारपोरेटर का गिरेबान पकड़ना चाहिए, मैं कहता हूँ गिरेबान क्यों पकड़ना चाहिए? हमने उसको वोट दिया है, उसके दरवाजे पे क्यों जाएंगे हम? हमको कारपोरेशन की चौखट पे जाना है और मुंह जबानी बात नहीं करना है। हमें तहरीरी शक्ल में निवेदन देना है। वो कमिश्नर हो, महापौर हो, स्टेटिंग चेयरमैन हो, हम कायदे कानून से वहाँ पर अपनी बात रखेंगे तो हमारा काम होगा। और कारपोरेटर की जो बात है, जब तक तो ऊपर से आदेश नहीं होता है कारपोरेटर महल्ले के अंदर नहीं आता। आप कितनी भी जोर लगा दें, हमने इससे पहले भी देखा है। आज संजरी मस्जिद के पास जो पुल तामीर हुआ है, इसके लिए हमने कारपोरेटर के पास भी गए, कारपोरेशन भी गए, लेकिन कारपोरेटरों ने ये कहा कि हम पैसा देकर वोट लिए हैं, हम जीत कर पैसे से आए हैं, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? कानूनी रास्ता बचता है, और वो कानूनी रास्ता है कारपोरेशन का गेट। अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम गेट के बाहर धरना देंगे, कारपोरेशन के बाहर धरना देंगे और अपना काम करवा कर मनाएंगे।
क्योंकि वो कमिश्नर जो बैठा है, जो गद्दी पे कमिश्नर बैठा हुआ है, वो हमारा नौकर है। वो सरकार उसको पगार देती है, किस लिए देती है कि आवाम का काम होना चाहिए, महल्ले का काम होना चाहिए। लेकिन हम हैं ना इल्मी की वजह से हम कारपोरेटरों के पास जाते हैं और कारपोरेटर साहब कहता है हम पैसा देकर वोट लिए हम जीत कर आए हैं, हम काम नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है कि आने वाले इलेक्शन के समय आप पैसा लेना बंद करें। हम अपनी वोट अपनी जिम्मेदारी से जो कैंडिडेट हमें पसंद है हम उसको वोट देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी पार्टी को वोट दें या उसको पार्टी से वोट दें। आपका जमहूरी हक है, आपकी वोट है, आपको जो लीडर पसंद है उसको आप वोट दें। अगर कोई नहीं पसंद है तो नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नोटा दबाएं। दोस्तों और साथियों, ये प्रोग्राम रखने का मकसद सिर्फ इतना है, ये जो नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये आपके सामने हमने बताया। और उस पुल के ताल्लुक से हमने देखा कि यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो भी पुल के ताल्लुक से लगे हैं, नौजवान भी लगे हुए हैं। हमने वहाँ पे चेयरमैन के कैबिन में बैठ के मीटिंग लिया। चेयरमैन ने कहा कि हम बहुत जल्द तुम्हारा पुल का तामीरी काम करवाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। फिर बाद में मालूम पड़ा 3 लाख रुपए का टेंडर पास हो गया, ठेकेदार कोई लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि 3 लाख उस ठेकेदार को कम पड़ रहा है। आज हमने इस महीने के अंदर चंदा जमा करके उस पुल की तामीर किया है। 1 लाख रुपए से अंदर वो पुल तामीर हो गया है। इतनी लूट मार कि 3 लाख रुपए को ठेकेदार को कम दिखता है। क्यों कम दिखता है? क्योंकि उसको लगता है 1-2 लाख रुपए हमारा तो रोज का खर्चा है, कम से कम इतना मिले कि महीनों तो चले। तो उस हिसाब से ठेका कोई लेने को तैयार नहीं हुआ और मजदूरी पे हमें चंदा कार के उस पुल को तामीर करना पड़ा। आज ये डीपी लगी हुई है यहाँ पे मुन्ना सेठ कारखाने के सामने। इस डीपी के लिए 2 महीने 3 महीने से एप्लीकेशन दी जा रही है, दौड़ भाग किया जा रहा है। तो ये डीपी जो है पास होकर यहाँ तक आ गई है और लग गई है। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में उसका 11,000 लाइन चालू हो जाएगा। ये किसकी मेहनत है? ये संघर्ष समिति है, ये कॉमरेड ग्रुप है, कम्युनिस्ट पार्टी है और पावर लूम संघर्ष समिति लोग ये हम लोगों ने बहुत मेहनत किया तो डीपी यहाँ पे आई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इतराज करते हैं। तो मैं वो भाई को कहना चाहता हूँ कि आप इतराज ना करें, आप हमें हौसला देते जाने के लिए। इतना ही कहकर मैं 2 बात अपनी खत्म करता हूँ। ये थे मकसूद कामरेड साहब जो अपनी बातों को रख रहे हैं। बस अब 2-5 मिनटों का और वक्त आपसे दिया जाएगा तो मैं आज के प्रोग्राम के इस्तेफालिया प्रोग्राम आज इनका हौसला अफजाई करना है। तो सबसे पहले कामरेड शहीद से आए अंसारी मोहम्मद सुफियान साहब का इस्तेकबाल करें। अंसारी मोहम्मद सुफियान साहब का। उसके बाद तैयार रहे कामरेड अल्ताफ हुसैन साहब। भाई पहले इधर निकाल लो। कामरेड फहीम अंसारी साहब अंसारी मोहम्मद सुफियान साहब का इस्तेकबाल कर रहे हैं। अब मैं अल्ताफ हुसैन साहब को आवाज दूंगा जो मुन्ना भाई रिक्शे वाले का इस्तेकबाल करेंगे। भाई मुन्ना भाई रिक्शे वाले। अब उसके बाद कामरेड अब्दुल करीम साहब को आवाज दूंगा कि वो आए अंसारी मोहम्मद उमैर साहब का इस्तेकबाल करेंगे। कामरेड यादव अंसारी साहब को आवाज दूंगा कि वो आए आरिफ भाई का इस्तेकबाल करेंगे। आरिफ भाई। उसके बाद में आरिफ भाई है ना अपने यहाँ पे। भाई आरिफ भाई जल्दी आओ ना आगे। भाई मैं सिद्दीक भाई को आवाज दूंगा कि वो भी आए। इफ्तिखार बाबा साहब का इस्तेकबाल करेंगे। सिद्दीक अंसारी साहब इस्तेकबाल करेंगे इफ्तिखार बाबा साहब का। मकसूद अंसारी साहब इस्तेकबाल करेंगे हमारे बुजुर्गों हमारे सरपरस्त नाज़िम कदम साहब का। भाई
मकसूद अंसारी साहब से दरख्वास्त है कि मुमताज शेर साहब का इस्तेमाल करें आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब का। मुमताज शेर साहब आगे आ जाइए, इस तरफ आगे आइए। मैं मकसूद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अब्दुल हमीद शेर साहब का इस्तेमाल करें। मैं कामरेड अकबर साहब अबरार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे खुर्शीद मुकादम साहब का इस्तेमाल करें। अबरार भाई नहीं है क्या? बदरुद्दीन भाई, खुर्शीद मुकादम साहब का इस्तेमाल करें। भाई मंसूर भाई भी यहाँ तशरीफ ले आए। मंसूर भाई, अंसारी मोहम्मद उमैर साहब और मुमताज शेर साहब दोनों साहिबान की जानिब से फिर कोई अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है। भाई तालियां बजाइए भाई। उमैर भाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं मंसूर भाई का, शुक्रिया। बदरुद्दीन कामरेड साहब है यहाँ मौजूद भाई, वो हमारे वायरमैन डेनी वायरमैन साहब का इस्तेमाल करेंगे भाई डेनी वायरमैन साहब भाई मुन्ना भाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसूद कामरेड साहब जो अंसारी मोहम्मद सुफियान साहब के वालिद साहब का भी मकसूद अंसारी साहब के हाथों से